Hello students, welcome to lecture number 3, General Principles and Processes of Isolation of Elements. In previous lecture, we are studied about the general introductions. After general introductions, then we move to the modes of occurrence of elements, means in the form of native or combined state. Then occurrence of metals, means what is the meaning of minerals, what is the meaning of ores, what's the difference between minerals and ores, and some principal minerals of some important metals that I have seen to you. Then after metallurgical process, so in this metallurgical process we know that some important metallurgical operations are crushing and grinding of the ore, concentration or beneficiation of the ore, extraction of crude metal from the concentrated ore, and fourth one is the refining of the crude metal. So in these first portions, first we have to crushing and grinding the ore, means the lumps are broken into small pieces with the help of crusher or grinders, is called as crushing. And now these small pieces are then reduced to a fine powder with the help of ball mill or stamp mill, is called as pulverization. After crushing and grinding of the ore, now we concentrated or the beneficiation of the ore, or other meaning is ore dressing. So the removal of unwanted earthy and siliceous impurities like gangue or matrix from the ore is called as an ore dressing, right? And the process used to concentrated ore is called as a beneficiation process. The finely ground ore is concentrated by a hand picking process, then hydraulic washing, or sometimes we call as a gravity separation, as well as we told as a levication. The meaning of levication means the process by which the lighter earthy particles are freed from the heavier ore particle by washing it with water, is called as a levication. And this method is used when the ore particles are heavier than the earthy or rocky group particles, and these oxides, ores such as those of iron, tin, and native ores of like gold, silver, etc., which are usually concentrated by this process. Then electromagnetic separation. The method of concentration is applied when either the ore of the impurities associated with are magnetic in nature. जैसे हमने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ था, फॉर एग्जाम्पल क्रोमाइट means ore of chromium, magnetite, ore of iron, and pyrolusite is an ore of manganese being magnetic are separated from non-magnetic siliceous gangue by this method. Same way, tin stone, or sometimes we call as an cassiterite, means SnO2. So this ore of tin being non-magnetic can be separated from the magnetic impurities like those of tungsten, of iron, and manganese, which are generally associated with this. Next is the electrostatic separation. This method is used for the concentration of ores which are good conductor of electricity from those which are poor conductor of electricity. So this method is based upon the principle that when electrostatic field is applied, the ore particle which are good conductor of electricity is charged, electrically charged, and so repelled by the electrodes, and having the same charge thus are thrown away. So this method is used for the concentration of PbS and ZnS ore occurring together, because in this case we know that PbS is a very good conductor of electrostatic field, so it immediately gets charged and thrown away by the roller, while ZnS being a poor conductor does not get charged and hence falls vertically from the roller, right? Then froth flotation process. So this method is widely used for the concentration of sulfide ores such as zinc blende or copper pyrites or galena. So the main principle of this froth flotation process is this method is based upon the fact that the surface of sulfides ore is preferentially wetted by oil, while the gangue is preferentially wetted by water. Right, so with this method the ore is crushed into a fine powder and mixed with water to form a suspension in a tank, and to this suspension are added collectors. Collectors means pine oil or xanthates like ethyl xanthates, potassium ethyl xanthates, fatty acids likewise, which enhance the non-wettability of the ore particles and froth stabilizers.
So with the help of this, then next method is a leaching. This process consists in treating the powder ore with a suitable reagent such as acid, base or other chemicals which can selectively dissolve the ore but not the impurities. So in these portions I give the examples of bauxite, because we know that the pure alumina is obtained from the bauxite ore by Bayer's process. In this case, Fe2O3, silica and titanium dioxide, they are the impurities. So first Al2O3 is react with the NaOH, so it's converted into sodium meta-aluminate, and then sodium meta-aluminate is neutralized with the carbon dioxide, so it's converted into alumina. So this is the leaching of a bauxite. Same way we leaching of the silver and gold ores will be carried by this method. After this method, we focusing on the extractions of a crude metals from the concentrated ore. The process used to obtain metals in free state from concentrated ore is called as an extraction. And these extractions involving two different chemical process, conversions of ore into metal oxide, and number two is the reduction or electronation of the metal oxides to the free metal. So first of all, conversions of the ore into metal oxides, or sometimes called as a de-electronation of the ores. So which is done with the help of calcination and roasting. So only difference between calcination and roasting. So in calcination is the process of converting an ore into its oxide by heating it strongly below its melting point, either in absence or limited supply of air. But in the case of roasting, so is the process converting an ore into metallic oxide by heating strongly at temperature insufficient to melt in excess of air. Right? So in these both two methods, the common agenda, moisture is driven out, organic matter is destroyed, non-metallic impurities like sulfurs, phosphorus, arsenic oxides, and they removed as a volatile gas. The water is removed, carbonates ore is converted into their respective oxide by loss of carbon dioxide. So and then ores are generally into metallic oxides. So in the case of roasting, it makes the ore porous and hence easily workable in the subsequent stage. And all this process which can be done either calcination or roasting is carried out in a reverberatory furnaces. तो हमने यहाँ तक सब कुछ देखा हुआ था. तो आज हम यहाँ से शुरू करेंगे एक फ्लक्स के बारे में. हमें यहाँ पे जो मेरा पूरा रिवीजन, अभी मेरा जो 7-8 मिनट का मेरा रिवीजन था वो मैंने किया हुआ है, क्योंकि ये डिस्क्रिप्टिव पॉइंट होने की वजह से अगर आप भी टच में रहे, 1-2 बार सुनेंगे तो भी आपको यहाँ से पता भी चल जाएगा. Now there is a flux is added into this extractions of crude metals from the concentrated ore के लिए यहाँ पे flux बहुत जरूरी है. So what is the meaning of flux? If the calcinate or the roasted ore still contains a non-fusible impurities like earthy matters, right? Once again, if the calcinated or the roasted ore are still contains non-fusible impurities of earthy matters, an additional substance called the flux is usually added during this reduction process. So what is the simple and short definition of flux? Is a substance that chemically combines with gangue or earthy impurities which may still be present in the roasted or calcinated or form an easily fusible material is called as a slag. तो फ्लक्स हम इसमें मिलाएंगे तो वो गैंग के साथ निकल के वो स्लैग की तरफ बाहर निकल जाएगा. जैसे द स्लैग दस फॉर्म्ड मेल्ट्स एट द टेम्परेचर ऑफ द furnace. It is insoluble in the molten metal and also being lighter floats over the surface of the molten metal from where it can be skimmed off by time to time. जैसे दो टाइप के फ्लक्स होते हैं, एसिडिक फ्लक्स होते हैं और बेसिक फ्लक्स भी होते हैं. सो इन द केस ऑफ एसिडिक फ्लक्स, जैसे मैं यहाँ पे आपको बात कर रहा हूँ, एसिडिक फ्लक्स के बारे में बात कर रहा हूँ, तो विच इज बेसिक इम्प्यूरिटीज जो जैसे होती है, मेरे पास इम्प्यूरिटीज बेसिक है, जैसे मेरे पास है कैल्शियम ऑक्साइड की है या आयन ऑक्साइड की है. सो फिर बेसिक इम्प्यूरिटीज लाइक लाइम और मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं प्रेजेंट इन. और तो एसिडिक फ्लक्स को निकालने के लिए जो है मीन्स वो बेसिक इम्प्यूरिटीज को निकाल के लिए मैं एसिडिक फ्लक्स जैसे सिलिका का मैं यूज करूंगा. राइट, जैसे वो CaO2 के साथ मिलकर CaSiO3 तो वो फ्यूजिबल स्लैग में चला जाएगा. उसी तरह से फेरिक सिलिकेट भी वो फ्यूजिबल स्लैग में चला जाएगा.
और बेसिक फ्लक्स भी हम कई बार यूज करते हैं फॉर एसिडिक इम्प्यूरिटीज। जैसे मेरे पास SiO2 की एसिडिक इम्प्यूरिटीज होती है जो गैंग के फॉर्म में, तो उसको हम सिलिका जैसे है फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड फिर भी रह गया हो प्रेजेंट इन द और, सो सम बेसिक फ्लक्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट लाइक इसको मैग्नेसाइट या हिमेटाइट हम उसमें यूज करके उसको कैल्शियम सिलिकेट में या मैग्नीशियम सिलिकेट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये फ्लक्स की जरूरत हमें तभी पड़ती है जब हमें जो हमने बोला था कि जो गैंग होती है, अर्थी इंप्यूरिटीज होती है, वो रोस्टेड और कैल्सिनेटेड के बाद भी वो रह जाती है, तो उसको निकालने के लिए जो मटेरियल यूज करते हैं उसको हम फ्लक्स कहते हैं, और फ्लक्स इज कन्वर्टेड इनटू स्लैग, तो वो स्लैग में उसको निकाल देता है। तो ये जो पूरा प्रोसेस हमने पढ़ा, अभी जो यहां से है ना कहानी में थोड़ा टर्न आएगा और मैं थोड़ा डीपली भी यहाँ पे बात करना चाहूंगा आपके साथ। अब देखिए ये जो 6.7.2 टॉपिक्स है, मैंने अभी आपको बोला था कि जैसे मैंने कन्वर्जन्स ऑफ द ओर इनटू मेटल ऑक्साइड तो कर दिया है, अभी हम पूरा हमारी जो जर्नी थी तो वो मेटल ऑक्साइड तक ओर से शुरू की हुई थी, सभी निकाल के अभी हम कहाँ पे आ गए हैं, मेटल ऑक्साइड पे आ गए हैं। अभी हमें मेटल ऑक्साइड का क्या करना है, रिडक्शन करना है ताकि हमारा जो मेटल है वो फ्री हो जाए, राइट। So the roasted or the calcinated ore is then reduced to the metal by using a suitable reducing agent। यहाँ पे बढ़िया वाला reducing agent होना चाहिए। reducing agent का मतलब ये है कि जो हमारी ओर के ऑक्साइड में से वो ओ निकाल के अपना ऑक्सीडेशन करे और ओर का जो अभी पोर्शन रह गया है ऑक्साइड का उसका रिडक्शन करे। द चॉइस ऑफ द रिड्यूसिंग एजेंट जो यही है ना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। However, depends upon the reactivity of the metal। वो मेटल की रिएक्टिविटी पे वर्क कर रहा है। If the metal to be extracted is very reactive, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, अल्कलाइन अर्थ मेटल है, एल्यूमिनियम है, तो the reductions of the oxides can be done only by the electrolytic method। क्योंकि ये जो सभी मेटल्स होती है ना तो वो अपनी तरह से ही वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रही है, यानी इससे ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट मेरे पास नहीं है। समझ में आ रहा है? सोडियम है तो वो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, लेकिन मुझे सोडियम को ही निकालना है तो सोडियम से बढ़िया मेरे पास रिड्यूसिंग एजेंट अवेलेबल नहीं है, तो उसको मुझे क्या करना पड़ेगा। सो देन द रिडक्शंस ऑफ दिस ऑक्साइड्स व्हिच कैन बी डन ओनली बाय द इलेक्ट्रोलिटिक मेथड, राइट। जो ऑक्साइड्स मेरे पास लेस रिएक्टिव है, जैसे मैं कहता हूं जिंक है, आयरन है, कॉपर है, लेड है, टीन है, मैंगनीज है, क्रोमियम, ऐसे जो होते हैं, यानी अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल के अलावा जो भी मेटल हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है तो विच कैन बी रिड्यूस बाय अ नंबर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। कई बार हम कार्बन का यूज करेंगे, कई बार हम CO का यूज करेंगे या कोई अनदर मेटल्स का यूज करेंगे। जैसे मैं अभी आपको ये जो पॉइंट यहाँ पे मैं जो एंट्री ले रहा हूं, आप देखिए ये बहुत बढ़िया और इंपॉर्टेंट टॉपिक है। JEE मेन, JEE खास करके एडवांस में, नीट में इसके बहुत बढ़िया क्वेश्चंस है यहाँ से निकाले जाते हैं, और हमें देखना होगा कि यहाँ से जो क्वेश्चन निकल रहा है, क्योंकि ये जो चैप्टर है ना उसमें से ये जो जगह है वो थोड़ी हॉट फेवरेट होती है सभी के लिए जो अच्छे पेपर सेटर होते हैं, तो वो एलिंगम डायग्राम में से, यानी हम उसको EDB शॉर्ट में बोलते हैं, उसमें से बहुत बढ़िया क्वेश्चन है वो निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या किया गया है कि व्हेन कार्बन इज यूज्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, जैसे कार्बन का मैं यूज करूंगा तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड होके निकाल देगा और मेटल को रिलीज कर देगा। सो द प्रोसेस यूजुअली इन्वॉल्व्स हीटिंग द मेटल ऑक्साइड विद अ सूटेबल रिएजेंट है। कार्बन भी यूज कर, मैंने बोला ना कार्बन भी यूज कर सकते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मुझे कब कार्बन यूज करना है, कब कार्बन मोनोऑक्साइड यूज करना है, ये भी एक कैलकुलेशन का टॉपिक है। देखिए अभी जो मैं यहाँ पे एक वर्ड बोल रहा हूं उसको बोलते हैं पायरोमेटलर्जी। द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग द मेटल बाय हीटिंग द मेटल ऑक्साइड्स विद अ सुटेबल रिएजेंट रिड्यूसिंग एजेंट इज कॉल्ड एज पायरोमेटलर्जी। यानी पायरोमेटलर्जी मुझे कब काम करेगी, जिंक होगा, आयरन होगा, कॉपर होगा, लेड होगा, एल्यूमिनियम टीन होगा, मैंगनीज होगा, क्रोमियम होगा, तभी वो वर्क कर पाएंगे, राइट। मैंने अभी आपको बोला था कि जैसे मेरे पास सोडियम है या मेरे पास पोटेशियम है या मेरे पास मैग्नीशियम है या मेरे पास एल्यूमिनियम है, तो उसके ऑक्साइड में से मुझे उसको निकालना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि उससे मुझे अच्छा वाला रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए, वो भी अपनी तरह से रिड्यूसिंग एजेंट की तरह ही वर्क कर रहे हैं।
So once again, the process of extracting the metals by heating the metal oxides with a suitable reducing agent का हम यूज करेंगे, उसको हम पायरोमेटलर्जी कहेंगे। जो हमारा एलिंगम डायग्राम, जो अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक चल रहा है, वो इसी के पर आधारित है, पायरोमेटलर्जी के ऊपर आधारित है। इट इज ऑब्जर्व दैट सम मेटल्स आर इजीली रिड्यूस्ड। कई बार ऐसा होता है कि कोई मेटल होती है तो वो इजीली रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि वो लो टेम्परेचर में ही रिडक्शन हो जाता है। बट अदर्स होती है, जैसे दूसरी वाली होती है, तो उसमें थोड़ी डिफिकल्टी की वजह यह होती है कि विच इज रिडक्शंस एट हायर टेम्परेचर। तो मुझे ये कैसे पता चलेगा टू प्रिडिक्ट विच एलिमेंट विल बी द मोस्ट सुटेबल रिएजेंट फॉर अ गिवन मेटल ऑक्साइड्स, राइट? मुझे कार्बन लेना है या कार्बन मोनोऑक्साइड लेना है, मुझे और दूसरा भी कोई मेटल का ऑक्साइड में ले सकता हूं यहाँ पे, तो मुझे उसका जो सिलेक्शन करना है, मुझे उसका फोरकास्ट करना है, प्रिडिक्ट करना है, तो मुझे ये और उसके व्हाट वुड बी द ऑप्टिमम टेम्परेचर एट विच रिडक्शन विल प्रोसीड स्मूथली। तो कौन सा टेम्परेचर होगा कि वहां पे वो स्मूथली हो जाएगा। देखिए, जो मेटल्स इजीली रिड्यूस होती है उसके बारे में तो हमें कोई ऐसा डिफिकल्टी हमें यहाँ पे एराइज ही नहीं होगी, राइट? सो रिडक्शंस अकर एट लो टेम्परेचर, सो इट doesn't make a problem for us, but the metals which are reduced with a difficulty, means reductions occur at high temperature, तब मुझे ये देखना पड़ेगा कि कौन सा अच्छा वाला रिड्यूसिंग एजेंट लूं या उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर भी मैं कैसा रखूं। तो उसके लिए आपको ये पायरोमेटलर्जी पढ़ने के लिए आपके पास जो थर्मोडायनेमिक्स वाला पोर्शंस था वो आपको पता होना चाहिए। समझ में आ रहा है मैं आपको क्या समझा रहा हूं? टू प्रिडिक्ट विच एलिमेंट इज द, मैंने अभी आपको बोला, सो फॉर द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आर क्वाइट यूजफुल टू एक्सप्लेन। देखिए, मैं अभी आपको थर्मोडायनेमिकली प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी के बारे में आपके साथ पहले यहां पे बात कर रहा हूं। अब देखिए, आपको मालूम ही होगा, फॉर एनी प्रोसेस जो गिव्स मेरी एनर्जी होती है बाय गिवन इक्वेशंस, वो तो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस आपने पढ़ा होगा। ये जो एंथैल्पी चेंजेस है, ये एंट्रोपी चेंजेस है, यहाँ पे टेम्परेचर एब्सोल्यूट मुझे केल्विन में लेना पड़ेगा, और जो मेरा डेल्टा जी आएगा, डेल्टा जी, तो उसका जो रिलेशन है वो नेगेटिव होना चाहिए। नेगेटिव का मतलब है कि वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कर देंगे। फिर मैंने आपको उस मीन्स जो मेरा थर्मोडायनेमिक वाला पोर्शन था, तो आपने ये भी पढ़ा होगा कि डेल्टा जी स्टैंडर्ड इज इक्वल टू माइनस RT/ln के, यानी डेल्टा जी और डेल्टा जी स्टैंडर्ड दोनों का रिलेशन इस तरह से है ना कि डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस इज इक्वल टू माइनस RT/ln के, या डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस RT/ln के भी हम यहाँ पे बोल सकते हैं। और ये जो के है, मेरा जो कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, तो वो जो कांस्टेंट है वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट सिस्टम के टेम्परेचर पे रिलेटेड है। मैंने अभी बोला डेल्टा जी अगर नेगेटिव होगा, ये सपोज के नेगेटिव है, तो नेगेटिव यानी मेरा के पॉजिटिव आ गया। अगर के पॉजिटिव आता है, यहाँ आपको मालूम है कि के इज ग्रेटर देन 1 और के विल बी पॉजिटिव या मींस ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब होगा यानी डेल्टा जी नेगेटिव होना या के विल बी पॉजिटिव, तो मेरा ये क्वेश्चन होता है कि रिएक्शंस विल प्रोसीड टुवर्ड्स प्रोडक्ट, यानी मुझे जो उसका स्पॉन्टेनियस, मैं उसके लिए यहां पे वर्ड यूज करूंगा, तो वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। दूसरा है द क्राइटेरिया ऑफ फिजिबिलिटी ऑफ अ रिएक्शंस एट एनी टेम्परेचर इज दैट ऑफ द डेल्टा जी रिएक्शंस मस्ट बी नेगेटिव। आपको कोई भी रिएक्शंस करना हो, एनी टेम्परेचर पे करना हो, तो आपके लिए अभी जो थोड़ा ऑप्शंस में यहां पे लगा रहा हूं, आप देखिए, मैं अभी कैलकुलेशन से भी आपको दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पे डेल्टा एस आप फॉर एग्जांपल ऐसे आप पॉजिटिव यहाँ पे रखते हैं, राइट? इक्वेशन जोन में मैंने यहाँ पे पॉजिटिव रखा है, डेल्टा एस मेरा पॉजिटिव है, डेल्टा तो मेरा नेगेटिव ही है। फिर से मैं आपको दिखा रहा हूं, क्योंकि ये जो रिएक्शंस हम यहाँ पे दिखाया था, पहले मैंने जो रिएक्शंस दिखाया था MXOY, सभी एक्सोथर्मी की होते हैं, यानी एनर्जी रिलीज ही होगी। एनर्जी रिलीज होने की वजह से उसका डेल्टा एच क्या होगा? नेगेटिव ही होगा, राइट? तो मुझे जो भी रिएक्शंस करना है तो उसके लिए डेल्टा जी नेगेटिव है। जैसे मेरे पास यहाँ पे डेल्टा एच है, वो तो नेगेटिव ही है, लेकिन डेल्टा एस मेरा पॉजिटिव है। समझ में आ गया? अगर डेल्टा एस मेरा पॉजिटिव है तो ये टोटल वैल्यू तो मेरी अभी नेगेटिव में चल रही है, और डेल्टा एच मेरा नेगेटिव है, तो नेगेटिव ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ये टेम्परेचर को कुछ उठाना पड़ेगा।
राइट। सो टेम्परेचर जैसे जैसे मैंने टी डेल्टा एस वैल्यू में इंक्रीज करूंगा तो टी डेल्टा एस जैसे डेल्टा एच से ज्यादा हो जाएगा तो ही डेल्टा जी नेगेटिव होगा। सो रिएक्शंस विल प्रोसीड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शंस। आपको समझ में आ रहा है मैं आपको क्या समझा रहा हूं? मैं आपको ये दिखा रहा हूं कि मेरे पास डेल्टा एच तो नेगेटिव ही है, ये डेल्टा एच तो नेगेटिव ही है, लेकिन मैंने टी डेल्टा एस का मूल्य वैल्यूज है जो वो भी मैं नेगेटिव रखूंगा तो मेरा जो दोनों का जो वैल्यू डेल्टा जी वो नेगेटिव हो जाएगा लो टेम्परेचर पे। लेकिन मेरा जो टी इंटू डेल्टा एस फिर भी नेगेटिव है मुझे और फिर भी डेल्टा जी मुझे नेगेटिव ही रखना है तो मुझे टेम्परेचर हाई करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है आपको मैं? सो यहाँ पे दिखा रहा है कि डेल्टा एस इज पॉजिटिव ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ टी डेल्टा एस इज इंक्रीज। सो टी डेल्टा एस इज ग्रेटर देन डेल्टा तो डेल्टा जी नेगेटिव होगा एंड द रिएक्शंस विल प्रोसीड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। उसी तरह से आप देखेंगे रिएक्शंस विद डेल्टा जी पॉजिटिव, जैसे डेल्टा जी पॉजिटिव होता है सो इसका मतलब ही ये होता है कि स्टिल बी मेड टू अकर बाय कपलिंग इट विद अनदर रिएक्शंस हैविंग लार्ज नेगेटिव डेल्टा जी। सो नेट डेल्टा जी ऑफ टू रिएक्शंस इज नेगेटिव। ये हमें कोई इतनी यहाँ पे दिक्कत नहीं होगी। देखिए कई बार बच्चे ये भी क्वेश्चन पूछते हैं, सर जी ये पॉजिटिव हो तो अगर कोई एक रिएक्शन भी ऐसा है कि जो वो एक्सोथर्मिक नहीं है, क्या है, एंडोथर्मिक होता है, तो डेल्टा एच क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ही हो जाएगा। तो मुझे टी डेल्टा एच भी पॉजिटिव करना पड़ेगा ना, राइट। तो टी डेल्टा ये क्या है, पॉजिटिव है, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव। तो मुझे यहाँ पे टेम्परेचर हाई करना पड़ेगा क्योंकि ये माइनस वैल्यू है तो ही डेल्टा जी नेगेटिव होगा। यानी मेरी जो कंडीशंस है वो आपको समझ में आ रही है कि मैं किस तरह से यहाँ पे उसका यूज कर रहा हूं, समझ में आ रहा है। और जो भी ये कपलिंग रिएक्शंस है वो एलिंगम डायग्राम से मैं यहाँ पे पता चल सकता है, विच मैं अभी एलिंगम डायग्राम अभी आपको दिखाऊंगा। सो विच प्लॉट स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स पर मोल। देखिए ये पर मोल के बारे में बात यहाँ पे की हुई है, O2 एज अ फंक्शन ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। समझ में आ रहा है? पहले मैं आज आपको ये है ना वो थोड़ा थोड़ा वो है ना जैसे जिसे हम कह सकते हैं कि बड़ा वाला थोड़ा मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूं। देखिए ये जो एलिंगम डायग्राम जो भी होगा तो उसका प्लॉट क्या होगा, तो कि डेल्टा जी स्टैंडर्ड फॉर्मेशन वर्सेस टेम्परेचर के बिलोंग्स में है। यानी मेरा जो एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर है और वाई एक्सिस पे मैं डेल्टा एफ जी स्टैंडर्ड रखूंगा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ एलिमेंट्स, राइट। मुझे ऑक्साइड्स के लिए बात की हुई है, ये भी आपको समझना पड़ेगा। सिमिलर डायग्राम्स कैन ऑल्सो बी कंस्ट्रक्टेड फॉर, कई बच्चे को ऐसा ही होता है कि सर जी एलिंगम डायग्राम है वो ऑक्साइड के लिए है, नहीं मेरे सिलेबस में अभी ऑक्साइड के लिए बताया हुआ है, विच इज ऑल्सो फॉर सल्फाइड्स एंड हैलाइड्स ऑफ द एलिमेंट के लिए भी सेम सिमिलर डायग्राम ही हम उसका ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन प्रेजेंटली वी आर फोकसिंग ऑन दिस डायग्राम हेल्प अस इन प्रिडिक्टिंग एंड द फिजिबिलिटी ऑफ द थर्मल रिडक्शन ऑफ एन ऑन। फिर से मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूं, देखिए अब ये पूरा आप देखेंगे तो यहाँ पे ये सॉलिड है, गैसियस है और मुझे उसको सॉलिड में कन्वर्ट करना है। आपको समझ में आ गया? मेरे पास यहाँ पे जो कंपाउंड है वो सॉलिड है, O2 क्या है, गैसियस है। नेट मुझे यहाँ पे इफेक्ट क्या हुई है, तो कि मेरी सॉलिड आई है। तो जो ये रिएक्शंस है उसमें जो मेरा ऑक्सीजन है वो गैसियस फॉर्म में यूज हो रहा है और मेटल मेरा सॉलिड फॉर्म में यूज हो रहा है। समझ में आ रहा है? सो मुझे मालूम है कि गैसियस की जो एंट्रोपी होती है वो सॉलिड और लिक्विड से ज्यादा होती है। तो इस रिएक्शंस में जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो ये गैसियस भी सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है ना, यानी मेरी एंट्रोपी क्या हो रही है, कम हो रही है। ये रिएक्शंस देखेंगे तो डेल्टा एस बिकम नेगेटिव। अभी ये जो भी रिएक्शंस होगा इसमें इस टाइप का जो रिएक्शंस होगा व्हेन वी स्टार्ट्स विद सॉलिड गैसियस टू सॉलिड, तो ऐसा होगा ना कि डेल्टा एस मेरा नेगेटिव ही आएगा। सो इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज, मैंने अभी आपको बोला डेल्टा एस मेरा क्या है, डेल्टा एस मेरा क्या है, अभी देखा मैंने आपको दिखाया हुआ है, राइट। डेल्टा एस मेरा नेगेटिव है तो डेल्टा एस बिकम नेगेटिव, सो मुझे टेम्परेचर इज इंक्रीज करना पड़ेगा ताकि टी इंटू डेल्टा एस बिकम मोर एंड मोर नेगेटिव। समझ में आ रहा है? सो टी डेल्टा इज सब्सट्रैक्टेड जैसे मैंने किया था तो डेल्टा जी मेरा लेस एंड लेस नेगेटिव होगा। दूसरी शब्दों में मैं उसको बताऊं तो डेल्टा जी जैसे जैसे इंक्रीज हो जाएगा विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर, तो डेल्टा जी वो है विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर।
दूसरे में मैं इस तरह से भी दिखा सकता हूं कि डेल्टा जी का जो ग्राफ था इसमें मुझे पॉजिटिव ही स्लोप फॉर मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस मुझे मिलेंगे। क्यों पॉजिटिव? देखिए ये जो बुक का मैं यूज कर रहा हूं, मैं अभी मेरा जो अभी नेक्स्ट लेक्चर होगा ना, तो ये पूरा टॉपिक मैं अपनी तरफ से आपको समझाऊंगा। पहले हम एक तरह से ये जो बुक क्या समझा रही है ना वो हम देख लेते हैं। ईच प्लॉट इज स्ट्रेट लाइन, सभी को स्ट्रेट लाइन एक्सेप्ट व्हेन सम चेंजेस इन फेज, जैसे कई बार सॉलिड टू लिक्विड भी होता है या लिक्विड टू गैसियस भी होता है, तो वो भी प्रोसेस हो सकती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द जो आप प्लॉट देखेंगे वो स्ट्रेट लाइन है, राइट। द टेम्परेचर एट विच सच अ चेंज अकर इज इंडिकेटेड बाय इंक्रीज इन द स्लोप ऑन द पॉजिटिव साइड। कई बार आप देखेंगे कि जिंक अचानक वो जो है वो उसमें जो वेरिएशन हम देखेंगे सडन, जैसे हम ट्रांजिशन हम देखेंगे ग्राफ में, तो वो क्यों हो रहा है वो भी हम देखेंगे। एट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ जिंक 118 में अभी ग्राफ को दिखाऊंगा, एंड देयर इज एन एब्स्ट्रैक्ट इंक्रीज in the positive slope of the curve. Similarly, the positive slope of the magnesium भी अचानक इंक्रीज हो जाता है एट बॉइलिंग पॉइंट एट 1363 पे। अभी देखिए जो ये पूरा में यहाँ पे हम तामझाम यहाँ पे दिखा रहे हैं वो जो है वो है ये एलिंग्राम डायग्राम का ही है। वो पूरा मैं आपको ट्राई कर रहा हूँ, फिर भी ये एक जो ग्राफ है वो मैं आपको यहाँ पे दिखाने की भी कोशिश कर रहा हूँ। अब क्योंकि मुझे ये ग्राफ से ही पूरा आपको समझाना पड़ेगा। देखिए अभी ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं ये लास्ट यहाँ पे जो मेरी पेन यहाँ पे वो टेम्परेचर है वर्सेस ये डेल्टा जी एफ स्टैंडर्ड, लेकिन पर मोल ऑफ O2 है, यानी 1 मोल O2 मैं उसमें यूज कर रहा हूँ, क्योंकि कई बार एडवांस में ये पर मोल की जगह डेटा मुझे किसी भी हो तो मुझे पर मोल में उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। डेल्टा जी एफ ये किलो जूल पर मोल का डेटा है। अब देखा आपने? अच्छा यहाँ पे देखिए अब जीरो वाला एक यहाँ पे दिया हुआ है। जीरो का मतलब डेल्टा जी जीरो का मतलब है कि रिएक्शंस है वो इक्विलिब्रियम में है, वो क्योंकि यहाँ पे के की वैल्यू 1 होती है। और बाकी के जो भी आप देख रहे हैं, देखिए जो भी ग्राफ देखिए, ये फर्स्ट वाला मुझे यहाँ पे दिया हुआ है मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम ऑक्साइड वाला दिया हुआ है, ये एल्यूमिनियम वाला दिया हुआ है, ये सिलिकॉन वाला यहाँ पे आप देखेंगे, ये जिंक वाला है। देखिए सडन चेंजेस है यहाँ पे, मैग्नीशियम में भी सडन चेंजेस है। हम देखेंगे ये कार्बन मोनोऑक्साइड टू कार्बन डाइऑक्साइड का वाला है, ये आयन वाला है, ये कॉपर वाला है, ये वहां पे मर्क्यूरी वाला है। देखिए यहाँ पे सडन चेंज यहाँ पे मुझे मिल रहा है, और ये एजी वाला ग्राफ है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो कितने कितने आपको मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, जिंक, कार्बन मोनोऑक्साइड, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, एफईओ वाला, कॉपर वाला, एचडी वाला, एजी वाला, ये जो भी मैंने दिखाया ना वो आप देखेंगे ना तो वो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है डेल्टा जी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, यानी माइनस वैल्यू कम हो रही है। यानी ऐसा इसका मतलब ये हुआ ना कि जिस तरह से टेम्परेचर बढ़ रहा है ये इस तरह से, तो इसका मतलब उसकी स्पॉन्टेनियस जो प्रोसेस होती है वो थोड़ी वीक हो जाती है। मैंने अभी आपको बोला जैसा जितना डेल्टा जी नेगेटिव ज्यादा से ज्यादा होगा उतनी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ज्यादा होगी। तो ये सभी ग्राफ आप देखेंगे तो इसमें टेम्परेचर बढ़ने से स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कम हो रही है। देखिए और यहाँ पे तो क्या हुआ, सडन चेंज है, ये ट्रांजिशंस है। यहाँ पे भी आप देखेंगे, यहाँ पे भी देखेंगे, यहाँ पे भी देखें, समझ में आ रहा है। एक ही ग्राफ ऐसा है कि जो उल्टा चल रहा है, वो है 2 कार्बन प्लस O2CO का। इसमें टेम्परेचर बढ़ने से डेल्टा जी कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है वो भी हम इसमें स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो ये जो पूरा हमारा एलिंगम डायग्राम है, तो एलिंगम डायग्राम पहले तो मुझे एलिंगम डायग्राम कब यूज करना है, पायरोमेटलर्जी में यूज करना है। द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग द मेटल बाय हीटिंग द मेटल ऑक्साइड्स विद अ सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट इज कॉल्ड एज एन पायरोमेटलर्जी। और उसमें मुझे वही फॉर्मूला लगानी है कि डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस। मैं फिर से रोल ऑफ टेम्परेचर के बारे में यहाँ पे आपको दिखाना चाहता था कि यहाँ पे रोल ऑफ टेम्परेचर क्या होता है। तो क्या रोल जो देखिए कई बच्चे को ये क्वेश्चन ये क्यों कम हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन सॉलिड है, O2 गैसियस है और ये गैसियस में है, यानी मेरा सॉलिड भी गैसियस हो रहा है। आपको समझ में आ रहा है? यानी ये जो केस है उसमें मेरी एंट्रोपी डेल्टा एस है ना वो बढ़ रही है। तो जैसे मैं उसको, क्योंकि सभी केस में डेल्टा एस है, डेल्टा एस वो कम हो रही थी, यहाँ पे डेल्टा एस क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो डेल्टा एस बढ़ने की वजह से मैं डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच इंटू टी डेल्टा एस में मैं यहाँ पे वैल्यू रखूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, तो वही ग्राफ इस तरह से मुझे मिलेगा। तो आपको समझ में आ रहा है?
तो मैं आपको ये जो एलिंगम डायग्राम है वो मैंने अभी कहीं जगह पे मैं देखता हूं कि एलिंगम डायग्राम विद इन 10 मिनट्स या 5-10 मिनट में वो खत्म कर देते हैं, लेकिन मैं आपको एलिंगम डायग्राम में मैं ज्यादा देर तक इसलिए रखना चाहता हूं ताकि एग्जामिनेशंस में यही टॉपिक में से ज्यादा क्वेश्चन अच्छी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में से निकल रहे हैं और इजी है। आपको कॉन्सेप्ट एक बार समझ में आ जाना चाहिए। फिर यहाँ पे एमसीक्यू भी बहुत इजी है, तो किस तरह से हम हैंडल करेंगे। यहाँ पे देखिए, ये जो टेम्परेचर हम यहाँ पे ट्रांजिशंस टेम्परेचर है, दूसरा ये क्रॉस ओवर टेम्परेचर भी होता है। देखिए यहाँ से क्रॉस हो गया है तो उसको हम क्रॉस ओवर टेम्परेचर भी बोलते हैं। तो ये क्या होता है, मुझे कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट सिलेक्ट करना है, क्रॉस ओवर टेम्परेचर क्या है, कौन सी टेंडेंसी के मेटल्स मुझे यहाँ पे लेने पड़ेंगे, राइट, कार्बन क्यों लेना पड़ेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड क्यों लेना पड़ेगा। तो ये थोड़ा थोड़ा मैं आपको यहाँ पे नेक्स्ट लेक्चर में आपको दिखाऊंगा। तो अब के लिए इतना ही।